हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो नैपसैक प्रॉब्लम एंड 01 नैपसैक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिख रही होगी। इस स्लाइड को बहुत शॉर्ट में मैंने प्रिपेयर किया है, तो मैं पूरा इसी स्लाइड पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो नैपसैक प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, प्रॉफिट है और वेट है। तो here some objects are given like 1 to 7 objects are given, and every object is having some profit associated with it, and every object is having some weight. ठीक है, every object is having some weight. Weight we understand what is the profit, हम जानते हैं weight क्या है, पर profit क्या हो सकता है। सी यहाँ पे एक देखो, मैंने एक बैग बनाया हुआ है। अ बैग इज गिवन, और ये जो बैग है इसको हम नैपसैक कहते हैं। द बैग कैपेसिटी इज 15। बैग की कैपेसिटी कितनी है? 15। तो एम कितना है हमारा? 15 है। लेट्स से एम इज 15 kg। तो ये जो बैग है वो 15 kg का ही जो है वेट जो है इसमें आ सकता है। तो वी हैव टू फिल दिस बैग विद these objects 1 से लेके 7 तक ऑब्जेक्ट्स मुझे इस बैग में जो है पुट करना है। And we will carry this bag to a different place and we will send these objects. We get that profit. So that profit is the gain that you got by transferring these objects some location. So transferring, you have to carry them in this container or bag. You can also call this knapsack as a container. आप इसको एक container की तरह भी कह सकते हो। This is a bag of knapsack and called it as container. So the problem is a container loading problem. So we find this type of problem in our daily life, like lots of goods are transported daily from one place to another place. Now the problem is about filling of that container with the objects. When it becomes a problem, if you have the objects whose total weight is more than the capacity of the container bag. If you have less, all can fit in that, there is no problem. If capacity is less and we have a lots of object to fill, then this is a problem. If you have all the objects more in number, the way it is greater than the capacity, then it becomes a problem. Here we have some objects, so I have to fill this bag with these objects. So this is the optimization problem, and the profit should be maximized, and the problem is now become optimization problem, and it is a maximization problem. We can also follow greedy method for optimization problem, as we know that greedy method is used for solving optimization problem which is suitable. Now next, what is the constraint over here? Constraint is the total object is included here in the bag. The total weight should be less than or equal to 15 kg. So here 15 kg is the constraint of the container. I can give various solutions, but we want a maximum result. The solution which is giving maximum result is an optimal solution. For these objects, I am going to include them. So I will write down whether the object is going to be included or not. So how much it is included? So let's say x value can be either, this x value can either be 0 or 1, and so x value is greater than equal to 0 or less than equal to 0. So it means that it can take fraction value also, because x की value 0 और 1 के बीच में lie कर रही है. The knapsack problem is for the object which are divisible also. So knapsack problem हम उसके लिए भी उन problems के लिए भी solve करते हैं जो objects जो हैं divisible हो सके. I have something like 5 kg, means I not take all 5 kg. I can take 2 kg also. I can also take 1 kg. I can also take half kg. So these objects can be divided. Now let us see how it is included.
how it is included in the bag? Look at profit P. Which one profit is the highest profit? आप कहोगे कि 18 is the highest profit. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. तो जो हम तरीका ऑप्ट करेंगे वो ये है कि हम इसको प्रॉफिट बाय वेट ले लेंगे. हम इसका प्रॉफिट बाय वेट कैलकुलेट करेंगे. तो हमने क्या किया है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट किया, तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई. मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 3, 1.6, 15 डिवाइडेड बाय 5, 3, 7 डिवाइडेड बाय 7, 6 डिवाइडेड बाय 1, 18 डिवाइडेड बाय 4, 4.5 कहलाएगा. एंड 3 डिवाइडेड बाय 1, 3 हो जाएगा. तो प्रॉफिट बाय वेट से हमने जो है इंक्लूड करना है. तो अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बाय वेट किसका आया है. तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बाय वेट जो है वो मेरा 5th ऑब्जेक्ट का है, दैट इज जो है 6 है. तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में जो है ये हमारा 5th ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड करेंगे. तो सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट 5 इंक्लूड होगा. ऑब्जेक्ट 5 का जो वेट है वो 1 है, तो 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 14. अब मेरे पास ने ऑब्जेक्ट O5 ऑब्जेक्ट जो है वो तो इंक्लूड कर लिया, पर अब मेरे पास कैपेसिटी बैग की कितनी बची, 14 बची है. नेक्स्ट किसका प्रॉफिट बाय वेट हमारा ज़्यादा है, वो हमारा ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मैं बैग में जो है इंक्लूड करूँगी और उसका जो है वेट कितना है उस ऑब्जेक्ट का 2, और 14 में 2 को माइनस कर दूंगी, दैट इज 12. तो अब मेरे पास कंटेनर का जो कैपेसिटी बचा है वो कितना बचा है, 12 kg का. नेक्स्ट कौन सा ऑब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे 4.5, जिस प्रॉफिट बाय वेट किसका है, ये 6th ऑब्जेक्ट का है. तो 6th ऑब्जेक्ट का जो प्रॉफिट है वो 18 है, लेकिन उसका वेट कितना है, 4 है. तो 12 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास अब बैग का कैपेसिटी कितना बचा है, 8 बचा है, और 6th ऑब्जेक्ट को हमने इंक्लूड कर लिया. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी इंक्लूडेड एज, आप जो है थर्ड ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो, 7th ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो. तो हम थर्ड ऑब्जेक्ट को लेते हैं. तो हमने ऑब्जेक्ट नंबर 3 जो है वो नैपसैक में डाल दिया. तो अब हमारे पास कैपेसिटी कितनी हो गई बैग की, 8 माइनस 5 वो 3 हो गई. अब हमारे पास कैपेसिटी 3 बची है. तो हम नेक्स्ट कौन सा ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, नेक्स्ट हम 7th ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं. अब 3 माइनस उसके 7th ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, वो है 1. तो 3 में 1 माइनस कर देंगे, 2. अब मेरे पास जो कैपेसिटी बची है बैग की वो 2 बची है. अब 2 बची है तो इसका मतलब हमारा जो है नेक्स्ट जो हमने इंक्लूड करना है प्रॉफिट बाय वेट वो 1.6 है, जो कि सेकेंड ऑब्जेक्ट का है. तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का मैं जो है वेट कितना है, 3 है, लेकिन हमारे पास जो स्पेस बचा है कंटेनर में वो 2 बचा है. तो हम क्या करेंगे, इसको डिविजिबल में लेंगे. 2/3 ऑफ द पार्ट हम बैग में इंक्लूड करेंगे. 2/3 ऑफ द पार्ट इंक्लूड करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास 2 माइनस 2 हो गया, और अब बैग की कैपेसिटी 0 हो गई, और 2/3 जो है हमने उसको बैग को इंक्लूड कर लिया है. सो जो कंटेनर में ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड हो गए हैं वो तो मेरे 1 हो जाएंगे, और जो कंटेनर में वेट नहीं इंक्लूड कर पाए हैं, ऑब्जेक्ट नहीं इंक्लूड कर पाया है, इसका मतलब है वो उसको क्या लिखेंगे, हम 0 से डिनोट करेंगे. और जितना पार्ट हमारा कंटेनर में गया है, फॉर एग्जांपल सेकंड ऑब्जेक्ट का क्या है, 2/3 पार्ट जो है वो कंटेनर में गया है. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. अब हम क्या करेंगे, वेट कैलकुलेट करेंगे. तो वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1. तो वैल्यू कितनी आ गई, 15. क्या हमारा जो कंटेनर का जो कैपेसिटी है वो 15 है, और हमारा 15 वैल्यू भी आ गई. नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1. इसको ऐड करेंगे तो प्रॉफिट मेरा कुछ 55.3 के लमसम आएगा.
तो इससे पता चलता है कि ये जो है ग्रेडी अप्रोच हमने यूज किया और हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आया है वो 55.3 आया और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ऑब्जेक्ट्स को नैपसैक बैग में रखा है। तो दिस इज नैपसैक प्रॉब्लम। नाउ नैपसैक प्रॉब्लम जो है वो फ्रैक्शन में हम उसका ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, अलाउड है। पर एक और प्रॉब्लम होती है 01 नैपसैक प्रॉब्लम। 01 नैपसैक प्रॉब्लम भी हमारी क्या है, ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करती है, लेकिन फर्क इसमें इतना है कि इसमें या तो हम ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे या तो हम ऑब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्रैक्शन इसमें अलाउड नहीं होता है। द प्रॉब्लम इज फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर indivisible. This is a container loading with indivisible objects. They either include the whole or don't include at all. Means अगर हम इसको एग्जाम्पल के उस पर देखें तो अगर फॉर एग्जाम्पल कि 01 नैपसैक प्रॉब्लम में अगर जो है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, हम इसको फ्रैक्शन में इसको नहीं ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे किसी भी कंटेनर में तो हम पूरा का पूरा इसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गई, 01 नैपसैक प्रॉब्लम कहलाती है। लेकिन अगर हम नैपसैक प्रॉब्लम की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब डिविजिबल पार्ट है, हम इसका थोड़ा कम पार्ट भी लोड कर सकते हैं कंटेनर में, मतलब दिस इज डिविजिबल, सो दिस इज अ नैपसैक प्रॉब्लम। और 01 में क्या है, हम पूरा या तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे या फिर हम ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू हमारी इंक्लूड नहीं होगी। सो स्टूडेंट, दिस इज नैपसैक प्रॉब्लम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।